ਪੀਐਨਓ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖੰਡਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਕਦੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹੀ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, जिन्हों के बारे कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह तीन ऐसे नां ने जिन्हों का 23 मार्च के नाल संबंध है, जिन्हों का देश की आज़ादी के नाल संबंध है, जिन्हों का देश की जमीन के नाल संबंध है, जिन्हों का जमीर के नाल संबंध है। अज असीं यूपी के विच आए हुए हाँ, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के विच खैर तहसील ते शादीपुर पिंड। आ जिहड़ी बिल्डिंग है यह ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਗੋਰੇ ਖੰਘੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟੰਗੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣੀ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਦੱਸਦੇ। ਅੱਜ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੰਘੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਟੰਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਰਸਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਂਡਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟੋਡਰ, ਕੀ ਨਾਮ, ਠਾਕੁਰ ਟੋਡਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। 18 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਲੀ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਜਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 800 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਅਨਸਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਊ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ सूरज होना तो गल शुरू करदा क्योंकि सूरज ने सानू बहुत सारी गल्लां से। सूरज जी, आपने राव साहब को बताया और उसके बाद बात आगे चली, तो इधर आ जाएं, थोड़ा पीछे भी सूर्य है, एक ही सूर्य रहेगा जहाँ। तो ये बताना कि आप कैसे याद करते हो शहीद भगत सिंह को? ऐसे याद करते हैं, देखो जी, हमारे यहाँ पे हमारे जो पूर्वज हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये हमें जो बताते हैं, उनकी बताई हुई बातों से ही हम जी उनके बारे में जानते हैं। हालांकि हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे दादा परदादा जो ये गांव में और हमारे प्रोग्राम जो होता है उससे सुनते हैं सारी बातें, तो हमको अच्छा लगता है कि हाँ, ये हमारा गांव वही है
जहाँ पे 18 महीने सरदार शहीद भगत सिंह रहे थे जी। और ये जो जगह है आप खड़े हैं, ये वही जगह है जहाँ पे उन्होंने शिक्षा दीक्षा का ज्ञान बच्चों को दिया था और कुश्ती भी कराई थी। यहाँ पे जी कुश्ती भी सिखाई थी जी। ये चीज़ है। थैंक यू। तो अब मैं ताऊ जी से बात करता हूँ कि ताऊ जी पहले तो मैं आपका नाम भूल गया, जे नाम बताना। राम राम से। रोहतास है। रोहतास जी, आप पोस्ट ऑफिस में रहे हैं तो साथों साथ पढ़ते भी रहे होंगे, लोगों तक चिट्ठियों भी पहुंचती रहे होंगे, तो पहले कभी शादीपुर का नाम ऐसे चर्चा में आया था जैसे भगत सिंह के साथ जुड़ने के बाद में चर्चा में आया? पहले से जैसे सन 1928 में जी जब भगत सिंह यहाँ पर आए गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ में, जी। तो तभी से भगत सिंह के नाम के साथ ये शादीपुर गांव जुड़ गया था। यहाँ के हमारे रईस थे बाबा टोडर सिंह जी, जो एक रईस परिवार था। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से यहाँ लाए और यहाँ आकर के उन्होंने भगत सिंह का परिचय जब बाबा साहब को दिया कि ये भगत सिंह है, तो बाबा साहब ने कहा था कि ये भगत सिंह नहीं बलवंत सिंह है, जिसने एक पंजाब केसरी की जो निर्मम हत्या की है, लाला लाजपत राय, तो इसने सैंडर्स को जो है मौत के घाट उतारा है। ऐसे बलवंत सिंह मेरे बेटे हैं जो भारत माँ के बवड़शीर हैं। तभी से शादीपुर का नाम जो भगत सिंह के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है। तो जैसे आपने बताया कि वो ठाकुर जी ने जो जमीन दी, इधर वो कॉलेज स्कूल बनाया, उस टाइम 1.5 साल वो इधर रहे, तो बहुत सारे बच्चों ने उस वक्त शिक्षा ग्रहण की होगी। तो उससे कोई, आपकी काफ़ी उम्र है, आपको कोई ऐसा आदमी मिला जो भगत सिंह से पढ़ा हो? मेरे बाबा के नाते में थे, मेरे बाबा ही थे जो कि यहाँ भगत सिंह पर पढ़े थे। अच्छा। उनके द्वारा हम उन भगत सिंह की जीवनी सुनते थे, वो हमको सुनाते थे कि हमारे गुरु कौन थे, कि सरदार भगत सिंह। वो हमको बड़ी अच्छी शिक्षा देते थे, बहुत योग्य गुरु थे हमारे। ये सभी जो बातें हमें बाबा साहब बताते थे, हमारे बाबा जो थे वो पढ़ते थे उन पर। जी। तो बलवंत सिंह का कब मालूम हुआ कि ये बलवंत सिंह नहीं, ये भगत सिंह है? जिस समय पर यहाँ पर जो है अंग्रेजों को कुछ शक हो गया था, भगत सिंह से बाबा साहब ने भी बात की। भगत सिंह भी कहने लगे कि बाबा साहब अब जो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तो कुछ दिन बाद फिर आ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर दबस भी दी गई थी। जी। उस दबस में भगत सिंह का कोई नाम निशान नहीं आया, ना भगत सिंह मिले। उसके बाद में फिर यहाँ से वो चले गए। तो जिस समय पर बाबा साहब ने बैल तांगा सजाया गढ़ी के द्वार पर, अपने दरवाजे पर, फाटक पर, तो हमारे ही गांव के एक गढ़ी थे, हाँ गढ़ी गांव में है। जी। तो वो बहुत बड़ा मकान है। तो जो है वहाँ से उन्होंने एक, जो इस समय पर एक डॉक्टर हैं नौरंग सिंह, उनके दादा उस मझोली के जो सारथी बना करके, वो जो हाँकने वाले, उनके द्वारा वो जो है वहाँ खुर्जा जंग सेन तक उनको छोड़ा गया था। जब जाते वक्त भगत सिंह ने कहा था कि हे बस्ती वालों, मेरा सभी को प्रणाम है, मैं बलवंत सिंह नहीं, मैं भगत सिंह हूँ। मेरा नाम असली भगत सिंह है। मैंने यहाँ पर 18 महीने गुजारे हैं। मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, और यदि मैं जिंदा रहा तो मैं दोबारा, हे बस्ती वालों, मैं आपकी सेवा में फिर आऊँगा। तो इधर आप, मेरे को मालूम हुआ कि आप बलिदान दिवस मनाते हो, ये कब से शुरू हुआ? इसे तो तकरीबन कुछ नहीं है तो लगभग 30-32 साल हो गए इसे मनाते हुए। अरे नहीं यार, 30-32 साल हो गए इसे मनाते। तो पहले स्कूल पर ही मनाते थे, छोटे उस रूप में। फिर यहाँ पर बस्ती की मांग के अनुसार यहाँ पर उनका पार्क बनाया, और उसमें हमारे ये ताहरपुर के जिला अध्यक्ष थे जी, ये क्या नाम, सुधीर चौधरी जी, उन्होंने वहाँ पर भगत सिंह की मूर्ति की स्थापना की जी। और हमारे पूर्व मंत्री थे ठाकुर जयवीर सिंह, उन्होंने उस पार्क की चारों बाउंड्री कराई।
तो अब जो ये बड़े रूप में वहाँ मनाया जाता है। और जहाँ पर ये जो है भगत सिंह ने बच्चों को पढ़ाया था, उनको शिक्षा दी थी, वो खंडर आज भी है। इधर ही तो खड़े हैं उसी खंडर में, उसी पर हम खड़े हैं जैसे। तो यहाँ पर उनका जन्मदिन अब मनाने लगे हैं। कई साल हो गए? 2 साल। 2 साल से उनका जन्मदिन भी उन्हीं के स्थान पर जहाँ भगत सिंह पढ़ाते थे वहाँ पर 27 सितंबर को मनाते हैं जी। और उसको बलिदान दिवस जो 23 मार्च को उस पार्क में मनाते हैं। तो मैंने सुना है कि यहाँ हर घर में भगत सिंह की फोटो है। आप सभी जानते हैं गांव वाले कि भगत सिंह यहाँ रहा था, कौन था? सभी को, ये छोटे बच्चे से लेकर के जो बुजुर्ग हैं उन तक सभी को ये मालूम है और सुना है। देखा तो उन्होंने नहीं था, अब जो है जो बुजुर्ग थे उन्होंने देखा था, वो पढ़े भी थे, लेकिन पूरे बस्ती वालों को ये मालूम है और क्षेत्र में भी ये अब मालूम हो गई, क्योंकि यहाँ पर बलिदान दिवस और जन्म दिवस दोनों मनाए जाते हैं कि भगत सिंह शादीपुर में 18 महीने रहे थे। ये सभी को, बच्चे बच्चे को भी मालूम है। तो आपके गांव के एक पटवारी थे, वो उधर भगत सिंह के गांव में रहते, वो क्या कहानी है? ये है कि हमारे गांव के एक पंडित जी थे, शंभू दयाल शर्मा जी। सन 1925 से वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट में लालायतपुर गांव जो भगत सिंह का था जी, उसमें लेखपाल यानी पटवारी के रूप में वो कार्य करते थे जी। भगत सिंह के परिवार से उनको बड़ा भारी परिचय था जी। क्यों कि लेखपाल का तो हर समय पड़ता ही है। सही है। तो वो जानते थे, भगत सिंह भी उनको शंभू दयाल शर्मा जी को जानते थे, भगत सिंह को खूब अच्छी तरह से, और भगत सिंह शंभू दयाल शर्मा जी को जानते थे। तो जब शंभू दयाल शर्मा इधर आए होंगे, कभी भगत सिंह से उनकी भेंट हुई? हाँ हुई थी, उनके गांव में भी हुई। और एक बार वो बता रहे थे कि वो जो अलीगढ़ में जा रहे थे, जेठ का महीना था कि सर में तो गर्मी पड़ रही थी जी। तो वो जा रहे थे तो आगे से भगत सिंह आ गए। भगत सिंह ने आकर के उनके डाठा बंधा हुआ था, मुँह छिपाया हुआ, क्योंकि भाई वो तो जो है अंग्रेजों के वो थे, 5000 का इनाम था उन पर, जो भगत सिंह को जिंदा मुर्दा जो उनको पकड़वाए। सही। तो भगत सिंह ने अपना मुँह छिपाए हुए आए और शर्मा जी के पैर छुए। शर्मा जी बोले अरे अरे कौन? तो भगत सिंह ने कहा कि शर्मा जी भूल गए कि मैं भगत सिंह हूँ। उन्होंने कहा अरे भैया क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि सुन लेना क्या हो रहा है। तो वो देखो, वो पंडित जी थे, बुढ़े से थे, तो वो तो डर गए। वो कहने लगे भगत सिंह के क्या तुम डर गए? अरे डरो मत, कि नहीं भैया माफ़ करो, कोई बात नहीं है। तो वहाँ से वहाँ भी मुलाकात हुई थी, अलीगढ़ में भी उनकी, और गांव में तो होती थी जैसे रहते थे। अच्छा, इस गांव में जो स्कूल की बिल्डिंग है, कोई और अविशेष भी हैं? हाँ, यहाँ एक कुआं भी है। कुएं में चलें? किधर है? पास ही है? पास में ही है। और फिर यहाँ पर जो है देखो, प्रभु की माया है, भगत सिंह ने यहाँ बाबा साहब के बाग में जो एक वृक्ष लगाया था आम का जी, वो 12 वृक्ष था। अभी चंद साल पहले वो एक आंधी में वो गिर गया, धराशायी हो गया। और वो निशानी तो बहुत ही शानदार थी। हर महीने साल का कोई दिन ऐसा नहीं था कि उस पर आम ही न मिल जाए। अच्छा, हाँ, 12 था। हाँ जी, वो भगत सिंह के हाथ का लगा हुआ पौधा था जी। उसकी सुरक्षा भी खूब की गांव वालों ने भी, लेकिन वो जो है प्रभु की माया, वो धराशायी हो गया आंधी। हम कुएं पे चलें? हाँ, कुएं पे चलो। छोटी हुई थी, यहाँ नीम के पेड़ थे। अब ये जो प्लॉट कट गए तो खेती के काम में आ गई ये जमीन। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾਓਂ ਪਰ लगेंगे हर वर्ष मेले, वो तो सब ਨੂੰ पता है, वही शेर है। एक ये भी गल आ कि वतन के नाम पे जो हुए हैं बेवतन, उन्हीं की आह बे असर, उन्हीं की लाश बे कफन। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ बहुत सारे लोग पहुंचन, हो सकता सरकार तक ये गल पहुंचे। साहू जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये खूह है, इसके बारे में आप बता रहे थे, तो इधर ही वो रहते थे भगत सिंह, तो इधर ही स्नान करते थे। हाँ जी, इसी ये जो कुआं जो है ये बहुत शानदार बना हुआ था उस समय चारों तरफ से, और इसी पर भगत सिंह स्नान करते थे जी। और इसी का जल ग्रहण करते थे। क्यों कि यहाँ पर बच्चे पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ाने को सुबह आते थे। यहाँ पर जो स्नान करने के बाद में पहले आ जाते थे बच्चों से, वो वर्जिश भी किया करते थे। हाँ, यहाँ बाग था, इस पर स्नान करके शौचालय से निवृत्त होकर के वो इस पर स्नान करके वहाँ पर यहाँ वर्जिश भी किया करते थे। तो फिर इसके बाद में वो बच्चों को पढ़ाते थे। इस पर उस समय पर बाल्टियाँ रहती थी, बाल्टी और रस्सी डली हुई। वो डोल होता होगा। हाँ, डोल जो है डोल होती है। क्यों बच्चे भी पानी पीते थे, और उनके यहाँ पर ये समझो का अब तो कहते हैं फार्म, पहले कहते थे सीर, और यहाँ बाग भी था 100 बीघा। तो वो यहाँ पर जो उस पर काम करते थे कार्यकर्ता, वो भी इसी कुएं का पानी पिया करते थे। और यहाँ पर ये जो चारों तरफ बाउंड्री, बड़ी ऊंची बाउंड्री थी, उसे हाथा बोलते थे। आगे फाटक चढ़े हुए थे, यहाँ से जो नहर दिख रही है ये वहाँ तक उनके थे। तो इधर इसी साइड की तरफ, उत्तर की तरफ, यानी जो फाटक चढ़ा हुआ था, ये फाटक तो एक आगे, उसे हाथा बोलते थे। उस गैलरी में भगत सिंह बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते। तो आपके बाबा बताते होंगे भगत सिंह कैसे थे, दिखने में कैसे थे? वो बाबा बोलते थे कि भगत सिंह एकदम गोरे, जैसे गेहुआ रंग था, आँख ऐसी थी कि उनसे नज़र मिला करके बात करना कोई साधारण नहीं था। जुम्बश भरियाँ। हाँ, कि डर लगता था भगत सिंह से जैसे। और भगत सिंह का चेहरा ऐसे खिलता था कि जैसे शेर का चेहरा खिलता है। बड़ी लंबी गर्दन थी, बड़ा अच्छा शरीर था। वो मल्ल भी कुश्ती भी किया करते थे, शरीर उनका बहुत अच्छा बताते थे। वो 6 फुट लंबे जान थे, देखने में बड़े सुहाने लगते थे। भगत सिंह की बात तो आप कर ही रहे हैं, आप मेरे को जब हम चाय पी रहे थे तब आप उधम सिंह की बात नहीं कहा। हाँ, तो जब सरदारों की बात होती तो आपको कैसे लगता है? आज भी आप बहुत खुश हुए जब हम आए। देखो, प्रभु की माया है और बस्ती का सौभाग्य है कि प्रभु ने आपके उसमें जो है ये याददाश्त की कि भाई जहाँ सरदार भगत सिंह थे और सरदार भगत सिंह कहाँ रहे, ये सब प्रभु की तो माया है, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। तो प्रभु ने आपको यहाँ भेजा, बस्ती का बड़ा सौभाग्य है। और मैं कह रहा हूँ कि इस बस्ती का छोटा बड़ा जो नौजवान भी, बुढ़ा भी, जो चल फिर नहीं सकता है, जिस समय पर भगत सिंह और ऊधम सिंह का नाम जब उनको सुनाया जाता है, उनकी जीवनी उन लोगों को सुनाई जाती है, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एकदम से बुढ़े जो वृद्ध हैं वो भी एकदम बैठे हो जाते हैं कि हमारे बबड़ शेर थे, जिसने लंदन को जाकर के हिला दिया। लंदन में डायर और जटलंड दोनों को गोली का निशाना बना दिया। भगत सिंह ने लंदन यानी अंग्रेजों की नींव हिला दी, अंग्रेजों की निद्रा को जीरो बना दिया। भगत सिंह कैसे कैसे सरदार थे जो बबड़ शेर पैदा हुए। तो हम जब आपके गांव में आए तो वो एक द्वार बना हुआ है, उस द्वार पे भी शहीद भगत सिंह का नाम लिखा हुआ है। तो क्या क्या है इस गांव में भगत सिंह के स्मारक बना हुआ, की याद में बना हुआ? यहाँ पर एक नहर से जो चलता है, जो रोड जो है, उस पर एक दरवाज़ा बना हुआ है, शहीद भगत सिंह दरवाज़ा। ये तो रोड पर बना हुआ है। और वहाँ से एक रोड जाता है पार्क की तरफ, पश्चिम की तरफ, नहर के किनारे पर ही एक पार्क बना है भगत सिंह का। वो पार्क की बाउंड्री भी है और उसमें भगत सिंह की प्रतिमा लगी हुई है। वो मैं वही ज़मीन आपने वो रजिस्टर्ड करवा ली है गांव के लिए, पार्क के लिए? हाँ, पार्क के लिए वो, पार्क के लिए वो जो है, एक यहाँ SDM आए थे और यहाँ पर जैसे आए और उनसे कहा
उन्होंने जो है वो पार्क के नाम, भगत सिंह पार्क के नाम से वो जो है। तो अब काफ़ी कुछ हो गया, बहुत कुछ होना रहता है, तो क्या क्या चाहते हैं आपके इधर जो आपके गाँव में हो? हम देखो इच्छा तो बहुत है, यहाँ पर भगत सिंह के नाम से इंटर कॉलेज भी हो, भगत सिंह के नाम से चिकित्सालय भी हो, और सादीपुर गांव जो है ये भगत सिंह सादीपुर के नाम से हो। ये खाली सादीपुर नहीं, पहले सरदार भगत सिंह सादीपुर के नाम से हमारे गांव का नाम गवर्नमेंट में जो है लिख दिया जाए। और यहाँ पर इंटर कॉलेज, ये चिकित्सालय, अरे जिसने अपनी पूरी जीवन कलाई वो समझ लो कली जिसने अपनी नौछावर कर दी देश के हित, हमारे हित, अंग्रेजों की दास्ता से हमने छुड़ाया। हम भारत माता जंजीरों में बंधी हुई थी गुलामी की में, उसने अपना जीवन सर्वस्व लुटा दिया, फांसी के फंदे को चूमा और अपने गले में डाल लिया। ऐसे शख्स के लिए क्या नहीं करना चाहिए, जितना भी करेगा उतना ही थोड़ा है। ऐसे के लिए इंटर कॉलेज क्या बेचता है या चिकित्सालय क्या बेचता है गवर्नमेंट के सामने। अरे भगत सिंह यहाँ पर रहे थे, या तो वो लालाजपुर में रहे थे, उनका गांव था लालपुर जो डिस्ट्रिक्ट लाहौर में था, और या सबसे ज़्यादा जीवन सादीपुर गांव में बिताया। तो हम तो कहते हैं पूरे गांव का बच्चा बच्चा भी आज भी कहता है कि भगत सिंह हमारा है, भगत सिंह का गांव है, क्यों ना इसका नाम जो भगत सिंह सादीपुर कर दिया जाए, क्यों ना यहाँ पर ये बना दिया जाए। ਸੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਊ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਆਸ਼ਕ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 47 ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਆਹ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ।